கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो. எதற்கும் தகுதி இல்லாத என்னை கூட கர்த்தர் நேரத்தில் சாட்சி சொல்லும்படியாய் கர்த்தர் எனக்கு ஒரு பெரிய கிருபை கொடுத்தாரே, அதுக்காக கர்த்தரை நான் ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். मैं जो किसी के भी योग्य नहीं हूँ इस स्थान में खड़े होकर गवाही देने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया, इसलिए मैं उसका धन्यवाद करता हूँ. நான் பாவியிலும் பிரதான பாவி நான். मैं पापियों में सबसे प्रधान पापी था. நான் கொஞ்சம் கூட தகுதியேனேம் இல்லை. मुझ में कुछ भी योग्यता नहीं. நான் இதற்கு இந்த சத்தியத்துக்கும் இந்த அப்போஸ்தல ஐக்கியத்துக்கும் நான் அந்நியனாக காணப்பட்டேன். इस सच्चाई के लिए इस प्रेरितों की संगति से मैं अन्य होकर दिखाई दिया. நான் ஒரு ஆர்சி குடும்பத்திலே வளர்ந்து பிறக்கப்பட்டேன். एक आरसी परिवार में जन्म लिया और पला बढ़ा. என்னுடைய தாயின் கருவிலே, मेरी माँ के गर्भ में ही, நான் என்னுடைய கருவிலே உருவாகும் முன்னே माँ के गर्भ में उत्पन्न होने से என்னை पहले தேர்ந்தெடுத்து கொண்டார். प्रभु ने मुझे चुन लिया. என்னுடைய தாயர் வந்து मेरी माँ जो थी, என்னை பெற்றெடுக்க வேண்டாம் என்று, குழந்தை வேண்டாம் என்று, मेरे जन्म के समय मुझे बच्चा नहीं चाहिए ऐसा बोलकर மருந்து மாத்திரை உண்ணார்கள். दवाई सब लिया था. ஆனாலும் फिर भी கர்த்தருடைய கிருபையினால परमेश्वर के अनुग्रह से என்னை இந்த உலகத்திலே கொடுத்தார். परमेश्वर ने मुझे इस संसार में दिया. मैं சிறு வயதிலே छोटी उम्र से ஒரு 12 வயது இருக்கும்போது जब मैं 12 वर्ष का था, ஒரு சகோதரன் एक भाई ஒரு பைபிளை கொடுத்தார். एक भाई उसने मुझे बाइबल दिया காலையும் மாலையும் வாசிக்கும்படி சொன்னார். और बोला इसे सुबह शाम पढ़ना. என்னுடைய தகப்பனார் मेरे पिता குடிப்பழக்கத்தில் இருக்கிறார். वे शराबी थे. என்னுடைய சாயந்திர நேரத்தில் அதிகமா தண்ணி எடுத்து விட்டு சீக்கிரமாய் வந்து நேரத்தில் தூங்கி விடுவார். शाम के समय में अधिक शराब पी के आके सो जाते थे. அதிகாலை நேரத்திலே और भोर के समय 4 மணிக்கு எழுந்து 4 बजे उठ के இந்த வேதாகமத்தை எழுந்து படிக்க சொல்லுவார், புதிய ஏற்பாட்டை. पवित्र शास्त्र ये नया नियम पढ़ने के लिए कहते थे. நான் படித்துக்கொண்டே இருப்பேன். मैं लेटा रहता था. என்னுடைய தகப்பனார் கேட்டுக்கொண்டே இருப்பார். என்னுடைய தாயும் தகப்பனுடைய முன்பாக உட்கார்ந்து அமர்ந்து கேட்டுக்கொண்டு வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டே இருப்பார்கள். जब मैं पढ़ता था तो मेरे माता और पिता मेरे सामने बैठकर वचन सुनते थे. அப்ப கேட்டு நான் படித்து முடித்த உடனே இப்பதான் இணைப்பிரியாத ஒரு சந்தோஷம், எனக்கு மகிழ்ச்சி உண்டாகும் என்று சொல்லிக்கொண்டு அவர் எழுந்து போய்விடுவார்கள். वो पढ़कर सुनने के पश्चात मुझे बड़ा खुशी हुआ ऐसा बोलकर, विश्राम मिला ऐसा बोल के वो चले जाते थे. இப்படி நாட்கள் கடந்து கொண்டே போய் கொண்டிருந்தது. ऐसे दिन बीतते रहे. 2001 என்னுடைய தகப்பனார் தூக்கு போட்டு இறந்து விட்டார். सन 2001 में मेरे पिता फांसी लगाकर मर गया. அதுக்கு பிறகு பாம்பேயிலே இந்த இடத்துல நான் ஒரு சில நாட்களாக இந்த இடத்துல ஜீவித்துக் கொண்டிருந்தேன். उसके बाद बॉम्बे में कुछ दिनों तक मैं जीवित रहा था. நான் இருக்கிற எல்லா கெட்ட பழக்கங்களுக்கும் நான் ஈடுபட்டவனாக இருந்தேன். मैं सब प्रकार की बुरी आदतों का शिकार था. எல்லா காரியம் செய்தேன். நான் ஒரு குடிப்பழக்க விபச்சாரத்துக்கான எல்லா அசுத்தமான எண்ணங்களும் நான் இறந்த உள்ளவனாக இருந்தேன். और मद्यपान करना, व्यभिचार करना, ऐसे सब प्रकार की अशुद्धता में संलग्न था. ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே एक संदर्भ में என்னுடைய சகோதரனிடத்திலே நான் போய் சண்டை போட்டு என்னுடைய பணத்தை அவனிடத்தில் நான் வேலை செஞ்சு சம்பாதிக்கும் போது அந்த பணத்தை அவன் அந்த பணத்தை அவன் எனக்கு சொந்தமா எடுத்துக்கொண்டபடினால ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் என்னுடைய சகோதரன் எனக்கு மிக பிசினஸ் பண்ணி கொண்டிருந்தான். பிசினஸ் பண்ண நேரத்தில் அவன் என்னுடைய பணத்தை அவரே எடுத்துக்கொள்ள. एक संदर्भ में ऐसा भाई के साथ व्यापार करने के समय मेरा पैसा भी उन्होंने हड़प लिया था. அந்த நேரத்தில் उस समय में அதிகமாக மது அறிந்து விட்டு अधिक मद्यपान करके அவர் வீட்டில் போய் சண்டை போட்டேன். उसके घर में जाके झगड़ा किया. அதிகமான சண்டை போட்டு அவருடைய பொருட்களை எல்லாம் நொறுக்கி அவரிடத்தில் அதிகமாக சகோதரத்தில் அதிகமாக சண்டை போட்டேன். उस भाई और बहन से मैंने अधिक झगड़ा किया, उनका सामान सब तोड़ दिया. அந்த நேரத்தில் சுயநினைவை இழந்து விட்டேன். उस समय में अपने होश को खो बैठा. நான் அந்த நேரத்தில் காவல்துறை மூலமாக நம்முடைய பாம்பேல இருக்கிற கூப்பர் மருத்துவமனைக்கு அட்மிட் பண்ணப்பட்டேன். और उस समय मुझे पुलिस वालों ने लेके कूपर अस्पताल में भर्ती किया. என்னுடைய சுயநினைவே கிடையாது. मुझे होश में ही नहीं था. என்னோட அந்த ஹாஸ்பிடல்ல பார்த்தா நிறைய பிணங்கள் அடுக்கி கொண்டு இருக்கும். हॉस्पिटल में वहां बहुत सारे लाश ऐसे सजा के रखी गई थी. அதன் மத்தியிலே उसके बीच में என்னை கொண்டு போட்டு விட்டார்கள். मुझे ले जाके डाल दिया. எனக்கு தெரியாது. मुझे नहीं मालूम. 3 நாளுக்கு பிறகு 3 दिन के बाद நான் எழுந்து பார்க்க என்னுடைய சுயநினைவு வந்தது. जब मुझे होश आया, என்னுடைய கைகால் எல்லாம் கட்டப்பட்ட நிலையில் காணப்பட்டது. हाथ पैर बंधी हुई अवस्था में थे. எனக்கு தண்ணி தாகம் அதிகமாக காணப்பட்டது. मुझे अधिक प्यास लग रही थी. நான் அந்த நேரத்திலே उस समय में அந்த 12 வயதிலே நான் புதிய ஏற்பாட்டை படித்த ஞாபகம் என்னுடைய இதயத்திலே ஓடிக்கொண்டே இருந்தது. 12 साल में जो नया नियम पढ़ा था वो मुझे याद था. அது எனக்கு திரைப்படம் போல ஓடிக்கொண்டே இருந்தது. वो एक चलचित्र के समान मेरी நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுவுடைய தனிப்பட்ட ஜீவியம், அவர் பட்ட பாடுகள் எல்லாம் எனக்கு நினைப்பு கொண்டே வந்தது. प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तिगत जीवन, उसके कष्ट सब मुझे याद आए. அதை நினைத்து ஒவ்வொன்றாக நான் என்னுடைய கர்த்தரிடத்தில் என்னுடைய பாவங்கள் எல்லாம் அறிக்கையிட்டேன். और उसे याद करके एक एक करके अपने पापों को मैं इकरार करता रहा. கர்த்தர் எனக்கு ஒரு நேரத்தில் ஒரு பரிபூர்ணமான சுகம் கொடுத்தார். परमेश्वर ने उस दिन मुझे एक पूर्ण छुटकारा चंगाई दिया. ஒரு 5 நாளுக்கு பிறகு நான் சுகம் அடைந்தேன், பரிபூர்ணமான சுகம் அடைந்தேன். 5 दिन के बाद मैंने पूर्ण चंगाई पाई. அதன் பிறகு சொந்த ஊருக்கு நான் போய் விட்டேன். उसके बाद मैं अपने गांव चला गया. சொந்த ஊருக்கு போய் நான் என்னுடைய தேவனை அதிகமாக தேடும்படியாய் अनेक சபைகளுக்கு போனேன். गांव में जाके मैं अपने परमेश्वर की खोज करने के लिए சமாதான சந்தோஷம் எனக்கு இல்லை. சமாதான சந்தோஷம் எனக்கு இல்லை. मुझे लेकिन ठीक से शांति और खुशी नहीं मिली. எனக்கு ஆண்டவர் என்னோடு ஆதியாகமம்
ஆதியாகமம் 12:1-2 மூலமா இடைப்பட்டதோடு அதிகமாக பேசினார். उत्पत्ति 12 अध्याय का पहला दूसरा वचन के अनुसार प्रभु मुझसे अधिक எனக்கு அருமையான எனக்கு ஒரு மனைவியை தந்தார். और मुझे एक अच्छी पत्नी भी दी. எனக்கு ஒரு பிள்ளையை ஒரு ஆண் பிள்ளை ஒரு பெண் பிள்ளையை கர்த்தர் தந்தார். और मुझे एक लड़का और एक लड़की भी दिया. ஞானஸ்நான அபிஷேகமாகும் கர்த்தருக்குள்ளே மகிழ்ந்திருக்க கர்த்தர் எனக்கு கிருபை கொடுத்தார். और प्रभु में बने रहने के लिए अभिषेक அந்த पाने की சாட்சியை मदद की. சுருக்கமாக சொல்லிக் கொண்டு போகிறேன். அதிக பரிசுத்தமா நேரம் இல்லாதபடியால் நான் சுருக்கமாக சொல்லிக் கொண்டு போகிறேன். संक्षिप्त में अपनी गवाही बोल रहा हूँ. அந்த நேரத்தில் நான் ஒரு 2 வருடமாக கோயம்புத்தூர் பட்டணத்திலே நான் ஒரு வேலைக்கு போய் கொண்டிருந்தேன். 2 साल तक कोयम्बतूर में एक काम में मैं जा रहा था. நான் அதுக்கு பிறகு சொந்தமாக கம்பெனி வைக்க வேண்டும் மிக அதிகமாக ஜெபித்துக் கொண்டே இருந்தேன். और मैं ऐसा प्रार्थना कर रहा था कि मेरा अपना एक जहाज भी होना चाहिए. கர்த்தருடைய கிருபையினால் எனக்கு சொந்தமாக கம்பெனி வைக்க கர்த்தர் எனக்கு கிருபை கொடுத்தார். और प्रभु के अनुग्रह से अपनी कंपनी बनाने के लिए प्रभु ने मदद किया. அதன் பிறகு 2008 उसके बाद 2008 में எனக்கு ஒரு கண் பார்வை இழந்து விட்டேன். आंखों की दृष्टि खो बैठा. என்னுடைய வாகனத்திலே போகும்போது गाड़ी में जाते समय என்னுடைய பிள்ளைகள் என்னுடைய மனைவிகள் தான் எனக்கு வாகனத்தை சொல்வார்கள், குழிமேடு பள்ளம் என்று சொல்வார்கள். मेरे बच्चे और पत्नी बताते थे सामने गड्ढा है. நான் யாரிடம் சொல்ல மாட்டேன். मैं किसी को बताता ஐயோ யாரா சொல்ல தப்பா நினைத்து விடுவார்கள். कोई किसी को बताने से वो गलत समझेंगे ऐसे நான் सोच. பரிசுத்தவானிடத்தில் சொல்லாமல் पवित्र लोगों को बताने के बिना நான் என்ன சொந்த முயற்சி अनेक ஹாஸ்பிடலுக்கு போனேன். मैं अपने प्रयास से कई हॉस्पिटल में गया. ஒரு ஹாஸ்பிடலுக்கு போய் நான் கண் ஆபரேஷன் செய்யணும் சொன்னார்கள். एक हॉस्पिटल में जाकर आंखों का ऑपरेशन करने को बोला. ஒரு கண்ணுக்கு 1.5 லட்சம் ரூபாய் ஆகும். एक आंख का 1.5 लाख होगा. ஆனா அது பரிபூர்ணமா சுகம் கிடைக்குமோ கிடைக்காது என்று சொல்லிவிட்டார்கள். लेकिन पूर्ण चंगाई मिलेगी कि नहीं ऐसा बोला. அந்த நேரத்தில் எனக்கு மிக அதிகமாக துக்கம் வந்து விட்டது. मैं बहुत दुखी हुआ. நான் எப்படி உலகத்தில் பிழைப்பேன்? ஐயோ என்னுடைய சொந்த பந்த இனத்தையெல்லாம் விட்டுவிட்டது தேசத்திலே ஆண்டவரை நம்பி நான் வந்துள்ளனே, நான் எப்படி பிழைப்பேன் என்று அதிகமாக கர்த்தரோடு அங்கலாய்ப்பிக் கொண்டிருந்தேன். मैं अधिक परमेश्वर से विलाप करता रहा. मैं अपना सब कुछ छोड़कर इस देश में आ गया हूँ. यहाँ मैं कैसे जीवन बिताऊंगा. கர்த்தர் என்னோடு இடைப்பட்டார். परमेश्वर ने मुझसे बर्ताव நான் किया. போய் பரிசுத்த யோவானிடத்தில் என்னுடைய நிலவரங்களை எல்லாம் சொல்லி அழுதேன். मैंने अपनी अवस्था पवित्र लोगों को बताकर मैं उनसे रोया. பரிசுத்தவான்கள் पवित्र लोग இரவு ஜெபங்கள் உபவாச ஜெபங்கள் எனக்காக அழுது ஜெபித்தார்கள். रात की प्रार्थना उपवास प्रार्थना मेरे लिए रोकर प्रार्थना किया. அந்த ஜெபத்தை கேட்டு उस प्रार्थना को सुन के 2012 2012 में கர்த்தர் எனக்கு ஒரு பரிபூர்ணமான சுகம் கொடுத்தார். परमेश्वर ने मुझे पूर्ण चंगाई दिया. இதுக்கு நான் தகுதி ஏதும் இல்லை. मैं इसके लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं. இப்போது நான் வாகனம் ஓட்டும் போது இரவில் போகும்போது வரும்போது என்னுடைய வேலை செய்வதற்கு கர்த்தர் எனக்கு ஒரு பரிபூர்ணமான சுகம் கொடுத்தார். अभी गाड़ी चलाने के लिए अपने काम पर आने जाने के लिए सब प्रभु ने मुझे पूर्ण चंगाई दी இது है. எல்லாமே தரவு. ये सब उसकी दया है. நான் என்னுடைய குடும்பம் என்னுடைய தகப்பனார் தூக்கு போட்டு விட்டார். मेरा पिता तो जिसने फांसी लगा ली थी. என்னுடைய சகோதரன் மண்ணானை ஊத்திக்கொண்டு இந்த பாம்பேல இறந்து விட்டார். और मेरे भाई भी जो मिट्टी का तेल डाल के यहाँ पर मर गया. கேன்சர் வியாதினால இறந்து விட்டார். एक जन कैंसर की बीमारी से मर गया. நான் அவரிடத்தில் அதிகமாக சத்தியம் சொல்ல வேண்டும் அதிகமாக வாஞ்சிப்பேன். मैं अधिक उनको सच्चाई सुनाने का आग्रह रखता ஆனால் था. முடியாது. लेकिन हो नहीं அவருடைய पाता. வார்த்தையை கேட்க மாட்டார்கள். वे मेरी बात नहीं सुनते थे. ஆனால் என்னுடைய தாயிடத்தில் என்னுடைய சத்தியத்தை கேட்டேன் சொன்னேன். लेकिन माँ के पास मैंने सच्चाई बताई. என்னுடைய சத்தியத்தை கேட்டு நம்முடைய சபையில் மத்தியிலே கொஞ்ச நாள் இருந்தார்கள். அதுமுறை கர்த்தருக்குள்ளே நித்திரையடைந்து விட்டார்கள். और वो सच्चाई को सुन के कलीसिया में थोड़े दिन थे. उसके बाद महिमा में प्रवेश कर गए. இனி எனக்கு 2 சகோதரர்கள் உண்டு ஒரு சகோதரி உண்டு. अभी 2 भाई और 1 बहन है. இவரெல்லாம் கர்த்தருக்குள்ளே வரும்படி वे लोग भी प्रभु में आने के लिए மேலான அப்போஸ்தலத்தில் ஐக்கியம் வரும்படி ये प्रेरितों की संगति में आना चाहिए. பரிசுத்தவான்களும் पवित्र लोग भी சபையார்களும் और कलीसिया भी. நானும் இந்த கர்த்தருடைய வருகைக்கு காணப்பட और मैं भी प्रभु के आगमन में दिखाई देने के நீங்கள் लिए யாரும் ஜெபித்துக் கொள்ளும்படி आप लोग की प्रार्थनाएं मांगकर சாட்சியை சுருக்கமாய் முடித்துக் मैं अपनी கொள்கிறேன். गवाही खत्म करता हूँ. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. प्रभु की महिमा हो. दूसरा मल्लेश संक्षिप्त में बोलना, जितना लोगों का नाम बुलाए उतने लोगों को ही देगा, क्योंकि 2 सेवक लोग भी बोलने के लिए चाहते हैं. परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देता हूँ. परमेश्वर ने मुझे भी एक अच्छा अवसर दिया. उनके पवित्र नाम की महिमा हो. सेवक लोग के बीच में परमेश्वर ने आज तक उनकी दया से परमेश्वर ने बनाए रखा है. मुझे मेरा परिवार को इसके लिए शुक्र करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ. पास्टर तो बोला है संक्षिप्त में, परमेश्वर ही मदद करे मुझे गवाही देने के लिए. परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो. मैं एक ऑफिस में सर्विस करता था. वहाँ पर एक भाई मुझे मिला और परमेश्वर के बारे में मुझे कई बात बताने से उसने मेरे सामने 3 बातें रखा. मैं वो आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ. मेरा उद्धार कैसा हो गया. परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो. यहाँ पर जितने नए लोग आए उन लोग से मैं विनती करता हूँ कि कोई भी मेरे साक्षी पर कोई नाराज नहीं हुए. वो भाई मुझे मिला, बोला तुम उपवास करते हो और मुंह से गंदी गंदी गाली बकते हो और बीड़ी सिगरेट स्मोकिंग करते हो, ये तुम्हारा कहाँ का उपवास है. पहला सब्जेक्ट ये. और दूसरा सब्जेक्ट उसने बोला तुम जब से भगवान को जाना तब से लेकर वो दिन से लेकर आज तक तुमने कितने भगवान लोग को नारियल फोड़ा
और उसके बदले में आपको क्या प्रतिफल मिला करके दूसरा सब्जेक्ट, परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। तीसरा सब्जेक्ट तीसरी बार मिला, वो बोला इंसान जो अपनी बुद्धि से अपनी कल्पना से मिट्टी लेता है, पत्थर लेता है और लकड़ी लेता है, उसको मूर्ति बनाता है और उसको घर में लेके जाके रखता है, उसको जो करना है वो करता है। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। इस तरह भाई साहब ने मुझसे बोला, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने उस भाई के जरिए जो मेरे हृदय में जो बातें डाला, और वो रात आप लोग यकीन नहीं करेंगे, वो रात में पूरा सोने पाया। क्या सच्चाई है ये परमेश्वर कौन है करके जानने के लिए परमेश्वर ने मुझे कई बातों में मदद किया। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देता हूं। उसके बाद वो भाई जिधर जिधर मुझे लेके जाता था उसके साथ संगति करना, आना जाना, उठना बैठना, ऐसा सब कुछ हो गया। इस बात में सारी बुराई के इस रंगीली दुनिया में बुराई से जी रहा था। परमेश्वर ने उस भाई के जरिए मुझसे मुलाकात लिया, उसके पवित्र नाम का धन्यवाद हो, और उद्धार पाया और बपतिस्मा लेने के लिए प्रभु ने मदद किया और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए मदद किया। और उसके बाद ये मंडली में आने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद किया। इसके पहले उद्धार पाया किसी और कलीसिया में, किसी के जरिए एक चर्च में गया और किसी के जरिए बपतिस्मा लिया और किसी के जरिए एक कन्वेंशन में 1997 में पार्ला कन्वेंशन चलता था नवंबर महीने में। उस कन्वेंशन में भाग लेने के जरिए इस कलीसिया का फाउंडेशन बनने के लिए मुझे, मेरा परिवार को परमेश्वर ने मदद किया। उसके पवित्र नाम का धन्यवाद करता हूं। और आस्ते आस्ते परमेश्वर ने मुझे किस तरह से आशीष किया, मैं आप लोग के साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूं। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। 2000 के समय में हम लोग ने कुछ दूध का लाइन चालू किया, सुबह जो दूध सप्लाई करते पैकेट का। परमेश्वर ने वो धंधे में मुझे, मेरा परिवार को आशीष किया। पहला एक छोटा सा साइकिल, जुना साइकिल लेके हम लोग सप्लाई करना शुरू किया। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। फिर उसके बाद और एक साइकिल लिया सेकंड हैंड, उससे चालू किया और बढ़ते गया। फिर उसके बाद थोड़ा दिन में और एक नया साइकिल लेने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। इस तरह से लगातार बढ़ते गया और संसार की सारी बुराई मेरे जीवन से परमेश्वर हटाते गया। और उसके बाद परमेश्वर ने फिर एक बाइक लेके बाइक पे लाइन डालने के लिए सुबह मदद किया। और उसके बाद और एक बाइक लेने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। उसके बाद फिर परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो, एक भाड़े पे रिक्शा लेके परमेश्वर का महिमा करने के लिए, परमेश्वर वो दूध का सप्लाई करने के लिए एक रिक्शा भी दिया भाड़े से। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। इस तरह करके परमेश्वर ने थोड़ा थोड़ा करके मुझे, मेरा परिवार को आशीष किया। और आज के तारीख में हम लोग सुबह उठकर कम से कम 1300 लीटर दूध सप्लाई करते हैं बंबई शहर में, बोरुली एरिया में। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। 1 ही किलोमीटर के अंदर परमेश्वर ने हमको अच्छे गिराक दिए और अच्छे सप्लाई दिए, इसके लिए परमेश्वर के नाम का धन्यवाद। और सुबह ही सब लोग हम लोग को पैसा दे देता है, नहीं तो कई लोग शाम को बुलाते। ये परमेश्वर की बड़ी दया है। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। इस तरह से प्रभु ने आशीष किया। और एक सब्जेक्ट हम लोग ने, एमटी थॉमस ने बोला था, जिसको घर चाहिए तुम लोग घुटने पे रह के प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद। इस तरह से हम लोग ने परिवार मिलके, क्योंकि हम लोग का 10 बाय 10 का खोली था, उसमें सेवक लोग आते थे, उन लोग का हम लोग ठीक रीति से प्रबंध नहीं कर पाते थे और विश्वासी लोग आते तो नहीं कर पाते थे। तो इस बातों को लेके परमेश्वर से बोला, प्रभु तेरी महिमा होना चाहिए हम परिवारों के जरिए। और हम लोग ने प्रार्थना शुरू किया और कई साल तक हम लोग लगातार प्रार्थना, विनती, और कभी कभी बीच में छोड़ भी देते, लेकिन परमेश्वर वफादार है। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। फिर जैसा हम लोग ने प्रार्थना किया था कि हम लोग को हाईवे के तरफ मीरा रोड में एक घर मांगता है, ताकि हम लोग सुबह दूध के लाइन पे बोरुली से आ जा सके मीरा रोड में। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। इस तरह से हम परिवार मिलके प्रार्थना किया और कई दिन तक प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने 10 बाय 10 का रूम तो इधर बोरली में है, लेकिन आज परमेश्वर की बड़ी दया से सेवक लोग की प्रार्थना, विश्वासी की प्रार्थना, हमारे एरिया प्रेयर के जो 2000 से लेके कई साल तक हमारे साथ में बोरली में एरिया प्रेयर में प्रार्थना करते थे, उन भाइयों के जरिए प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने हमारे लिए आज मीरा रोड में एक 610 का परमेश्वर ने एक रूम दिया। हाँ, और हॉल देके तो कम से कम एक 20 लोग बैठ के प्रार्थना कर सकता है, ऐसा परमेश्वर ने एक घर हमें दिया। हाँ, 1 बेच का था, उसको हम लोग ने परमेश्वर की दया से 2 बेच का बनाने के लिए परमेश्वर ने हम परिवारों को मदद किया। इसके लिए मैं परमेश्वर के नाम का शुक्र करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और एक बात बस अभी बीच में अभी
नवंबर महीने में गया, दिसंबर महीने में परमेश्वर की दया से सेवक लोग की आज्ञा के अनुसार प्रार्थना के जरिए परमेश्वर ने मुझे मेरा बेटे का विवाह होने के लिए मीरा रोड में परमेश्वर ने मदद किया। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। उसमें भी परमेश्वर ने अद्भुत रीति से वो विवाह चलाया। हमारे सोचने से, हमारे समझने से बिल्कुल बाहर था, वाकई में बाहर था। अगर यहां पर मैं खड़ा रह के आंखों में आंसू लेके परमेश्वर का महिमा भी करो तो मेरे लिए कम है। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। आमीन। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने मुझे, मेरा परिवार को आज तक इस बंबई शहर में बनाए रखा है और मुझे, मेरा परिवार को प्रभु अच्छा परवरिश कर रहा है। अच्छा बेटे को सर्विस है, बहू को सर्विस है, मुझे सर्विस है। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद। സുലോചന ഇവിടെ എന്തൊരു സാക്ഷി പറയാൻ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചതിനായി ദൈവം സർവകൃപാലുവായ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ सर्वदयालु परमेश्वर के सम्मुख में ഒരു യോഗ്യതയില്ലാത്തതായ എനിക്കും मैं जो किसी चीज के लिए योग्य नहीं थी, ഒരു സാക്ഷിയായി നിൽക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിച്ചതിനായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം. मुझे गवाही देने के लिए खड़ा किया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം സെന്റർ വിശ്വാസിയാവുന്നു. मैं त्रिवेंद्रम सेंटर की विश्वासी हूँ। എനിക്ക് പ്രശംസിക്കുവാനൊന്നുമില്ല. मुझे घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं, യേശുവിന്റെ കാൽവരി ക്രൂശിൽ മാത്രമാകുന്നു. केवल यीशु की कलवरी क्रूस पर है। എന്റെ ദൈവത്തെ എത്ര തന്നെ എവിടെ പോയി സാക്ഷി പറഞ്ഞാലും മതിയാകുകയില്ല. कहीं भी गवाही देने से प्रभु का मैं भलाई करना, അത്രമാത്രം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം എനിക്ക് നന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. इतना उसने भलाई की है। എന്റെ കുടുംബത്തിൽ മന്ത്രവാദ കെട്ടുകളാൽ मेरे परिवार में जादू टोने का बंधन था, അനേക മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. बहुत मृत्यु हुई थी। എന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഞങ്ങൾ 8 പെൺമക്കളാകുന്നു. मेरे माता पिता का 8 लड़कियां हैं ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ആകുന്നു. और मैं आखिरी थी। എന്റെ കുടുംബത്തിൽ അനേക മരണം ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ട് परिवार में बहुत सारी मृत्यु ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ എനിക്ക് അടുക്കുവാൻ സാധിച്ചു. प्रभु के निकट आने के लिए प्रभु ने എന്റെ മാതാവ് മരണത്തിന്റെ വക്കോളം എത്തിയതായ സമയം मेरी माँ जब मृत्यु की शैया पर थी, ഞങ്ങൾ മാർത്തോമ കുടുംബത്തിലായിരുന്നു. हम तब मार्थोमा परिवार में थे। അറിഞ്ഞ സത്യത്തിനൊത്തവണ്ണം जानी हुई सच्चाई के अनुसार വിശ്വാസത്തോടെ विश्वास के साथ കണ്ണുനീരോടെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. आंसुओं के साथ हम प्रार्थना करते थे। ദൈവം വിടുതൽ തന്നു. परमेश्वर ने छुटकारा दिया। എന്നാൽ എന്റെ മന്ത്രവാദ കെട്ടുകൾ ഞാനും ഒരു രോഗിയായി തീർന്നു. जादू टोने के कारण मैं भी बीमार हुई। എന്റെ മാരേജ് വെടിഞ്ഞു. मेरी विवाह हुई हो। ഞാൻ 4 എന്റെ ചേർന്ന് കുറെ ഭാഗം റോഡ് ചെയ്ത് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു CSRക്കാർക്ക് ഒരു ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി കൊടുത്തു. और भी ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് കൊടുത്തു. उपवास प्रार्थना के लिए मैं गई നോരച്ച नवरोजा में। എന്റെ മാതാവ് എന്റെ പിതാവ് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വേർപെട്ടു. मेरे माता पिता इस संसार से എന്റെ अलग हुए। പിതാവിന്റെ വേർപാടോടും കൂടെ मेरे पिता के अलगाव के साथ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു. परिवार में शांति नष्ट हुई। സമാധാനം എന്ന ജീവിതത്തിന്റെ താക്കോൽ शांति जीवन की कुंजी है, എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. वो नष्ट हो ഞാൻ गई। എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ലാതെ क्या करना नहीं मालूम। ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ദൈവം എന്നെ ഈ വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ കൊണ്ടുവന്നു. मैंने प्रार्थना की, प्रभु मुझे संतों की संगति में लाया കൃപയാൽ और प्रभु के अनुग्रह से 22 വർഷം കൊണ്ട് 22 सालों से എനിക്ക് എല്ലാ ലോക്കലുകളിലും 3 ലോക്കലുകളിലും 3 लोकल में വിശുദ്ധ മക്കളോടുകൂടെ സഹായിക്കുന്നതിന് അവിടെ നിൽക്കുന്നതിന് എന്നെ സഹായിച്ചു. पवित्र लोगों के साथ रहने के लिए, वहाँ सहायता करने के लिए मदद की। എന്നാൽ വിശുദ്ധന്മാർ എന്നെ ദൈവത്തിന്റെ വേലയ്ക്കായി പല പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും എന്നോട് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. पवित्र लोगों ने सेवा के निमित्त कई बार प्रार्थना किया था, विनती किया था। അന്ന് വളരെ കഷ്ടമായിരുന്നു. उन दिनों में बहुत कष्ट था। കുടുംബത്തിൽ പിശാചിന്റെ ബന്ധനമുള്ളതിനാൽ परिवार में शैतान का बंधन ഞാൻ था। നല്ലൊരു വിശ്വാസിയായി നിന്നുള്ള പ്രതീക്ഷിച്ചു. मैंने सोचा एक अच्छा विश्वासी होकर എനിക്ക് रहूंगी। ചില ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. कुछ आग्रह भी था, നിന്റെ വിചാരങ്ങളല്ല എന്റെ വിചാരം, लेकिन मेरे विचार उसके विचार നിന്റെ नहीं। വഴികളല്ല എന്റെ വഴികൾ. तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग नहीं। എന്നാൽ എനിക്ക് എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും നിവർത്തിച്ചില്ലായിരുന്നു. मेरे आग्रह कुछ पूरा नहीं हुआ, എന്നാൽ പിശാചെന്നെ लेकिन शैतान ने പാപവഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. പാപവഴിയിലേക്ക് पाप കൊണ്ടുപോയി के रास्ते में ले गया। എനിക്ക് ശേഷിച്ച കുറെ വസ്തു ഞാൻ ഒരു അടുത്തുള്ള വസ്തു RSSകാർക്ക് കൊടുക്കാത്തുള്ള ശുദ്രം ചെയ്ത് എന്റെ ഭവനത്തിൽ കൊണ്ടുവച്ചു. और RSS वो एक जादू टोना की वस्तु लाकर मेरे घर में रखा। അത് ഞാൻ കൈകൊണ്ടെടുത്തു. उसे मैंने हाथ से उठा लिया। ഞാൻ രോഗിയായി തീർന്നു. मैं बीमार हो गई। എനിക്ക് ഇരിക്കുന്നതിനോ നിൽക്കുന്നതിനോ കിടക്കുന്നതിനോ സാധിച്ചില്ല. उठना बैठना मैं कुछ नहीं कर पाती थी। ഞാൻ വിശ്വാസവിട്ടലായി നിങ്ങൾ തന്നെയും विश्वास घर में रहने എന്റെ से വിശുദ്ധ മക്കളെല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. पवित्र संतों ने मेरे लिए प्रार्थना की, രക്ഷയില്ലായിരുന്നു. लेकिन कोई बचाव എന്റെ नहीं था। സ്വന്തക്കാർ എന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. रिश्तेदार मुझे घर में ले गए। ഞാൻ മരണത്തിന്റെ വക്കോളം എത്തി. मैं मृत्यु शैया तक पहुंची। എന്നെ കാണാൻ വരുന്നവരെല്ലാം जो मुझे देखने आते थे, ഇത്രയും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചതായ നിനക്കിത് സംഭവിച്ചു എന്ന് പോലെ परमेश्वर के ऊपर तूने इतना भरोसा रखा, तेरे साथ ऐसा। കൃപയാൽ കരുണയാൽ लेकिन प्रभु के अनुग्रह से, दया से എനിക്ക് ദൈവം വിടുതൽ തന്നു. मुझे छुटकारा मिला। മാത്രമല്ല इतना ही नहीं, വീണ്ടും और दोबारा എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ബാക്കി ശേഷിച്ച വസ്തു എന്റെ ചേച്ചിയുടെ മരുമൊരു മന്ത്രവാദി
और मेरे जो मेरे ഞാൻ ബസ് बहन का जो पति है वो ദൈവനാമത്തിന് കൊടുക്കുമെന്ന് വെച്ചിട്ട് प्रभु के नाम से मैंने जो संपत्ति दूंगी ऐसे सोच के रखा था എനിക്ക് മന്ത്രപ്രയോഗം ചെയ്ത് എല്ലാം സ്വന്തമാക്കി और सब जादू के द्वारा अपना कर लिया എന്നെ കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിച്ചു. मुझे हत्या करने का प्रयास किया ദൈവം എന്നെ വിടിയിച്ചു. प्रभु ने उससे छुड़ाया ഞാനിപ്പോ വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നത്. अब मैं विश्वास घर में ही रहती हूँ എനിക്കെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിലും सब कुछ नष्ट होने से भी ദൈവം എന്നെ കൃപയാൽ നടത്തുന്നു. परमेश्वर अपने अनुग्रह ഇപ്പൊ से എനിക്ക് चलाता സെന്റർ വൈത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരായി സഹായിച്ചു. है। सेंटर फेथ तुमसे मेरी सहायता की എന്റെ ദൈവമക്കളെ അറിയാതെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത്. और प्रभु के लोग जाने के बिना मैं इधर आई। മാത്രമല്ല इतना ही नहीं, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ വെളിയെ നിരസിച്ചതിനാൽ प्रभु के मार्ग को मैंने तिरस्कार किया तो എനിക്ക് വളരെ നരകതുല്യമായ എല്ലാം സംഭവിച്ചു. कई तरह की नारकीय എനിക്കുള്ള घटना मेरे जीवन में। വസ്തു വീടുകളെല്ലാം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. मेरा घर संपत्ति सब नष्ट हो गया। എന്നാൽ ദൈവം എന്നെ കൈവിട്ടില്ല. प्रभु ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। എന്നെ കേൾക്കുന്ന യൗവനക്കാരികളെ और मेरे इस बात सुनने वाले जवान भाइयों बहनों, വിശുദ്ധന്മാർ കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ വിളി ഉണ്ടായാൽ पवित्र लोगों के द्वारा यदि प्रभु की सेवा की എനിക്ക് बुलाहट ദൈവത്തിന്റെ വിളി ഉണ്ടായതാണ്. मुझे सेवा की बुलाहट मिली എന്നാൽ थी, ദൈവത്തിന്റെ വിളിയെ നിരസിച്ചതിനാൽ लेकिन उन दिनों में से बुलाहट का तिरस्कार किया इसलिए ഞാൻ നരകതുല്യമായി തീർന്നു. और मैं इसी अवस्था में आ എനിക്ക് गई। വെയിറ്റോമിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടും फेतों में रहने के कारण വിശുദ്ധന്മാരും മദർമാരും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനാൽ पवित्र लोग मेरे लिए प्रार्थना करते इसलिए കൃപയാൽ എന്റെ ജീവനെ എനിക്ക് തന്നു. प्राण अनुग्रह से मुझे जीवन എന്റെ दिया। കുടുംബത്തിൽ ഒരു 6 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ और मेरे परिवार में भी 4 മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. 4 मृत्यु पहले हुई थी। ശേഷിച്ചവർ രോഗികളായി കഴിയുന്നു. बाकी लोग बीमार भी हो गए, എന്നെ മാത്രം केवल मुझे ही ദൈവം ഈ വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ കൊണ്ടുവന്നു. संतों की संगति में प्रभु ने ദൈവത്തിന്റെ സഭയുടെ ഒരു അംഗമാക്കി തീർത്തു. परमेश्वर कलीसिया का अंग बनाया है। എന്റെ ബാക്കി ചേച്ചി എന്റെ ഒരു ചേച്ചി മക്കളെല്ലാവരും ഈ രക്ഷയിലേക്ക് വരുന്നതിനും और भी बाकी जो बहनें हैं वो ഇനി सब ഞങ്ങളുടെ सुधार में आने, കുടുംബത്തിൽ പിശാചിന്റെ ബന്ധനം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതിനും शैतान के बंधन नहीं रहने के ഞങ്ങളുടെ लिए കുടുംബത്തിൽ മരണം സംഭവിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും और कोई मृत्यु होने के बिना എല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. सब लोग प्रार्थना करना चाहिए। എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ आमेन। प्रेज द लॉर्ड। സ്തോത്രം. स्तोत्र। परमेश्वर ने मुझे अपने इस सम्मुख में खड़े होने के लिए प्रभु ने ये पवित्र समय दिया। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ही मेरा एक सच्चा मित्र है जिसने आज मुझे जीवन के साथ आप लोगों के सामने खड़ा किया है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार में जन्म हुई कि जिस परिवार में कोई बच्चा नहीं बचता था, क्योंकि जितने बच्चे भी होते थे सब मर जाते थे। बच्चे के लिए मेरे मम्मी पापा इधर उधर पहाड़ों में, मंदिरों में, कई जगहों में गए, लेकिन किसी ने भी मेरे मम्मी पापा की प्रार्थनाओं को, नहीं तो उनकी बाजू को किसी ने भी पकड़ा नहीं। इसी दुख में मेरे पापा बहुत शराब पीते थे और शराबी होके गिने जाते थे। इतना अच्छा काम होने के बावजूद भी वो सारा कुछ, सारा पैसा शराब में ही उड़ा देते थे। लेकिन वो सच्चा मित्र प्रभु जिसने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझे चुना था, उसने सही समय पर हमारी पुकार को सुना। मेरे से पहले मेरा एक भाई और मेरी बहन, क्योंकि हमारे घर में किसी ने, मेरे मम्मी पापा के ऊपर किसी ने जादू कर दिया था जलन के साथ कि इनके कोई बच्चा नहीं रहना चाहिए, ये बे औलाद इस संसार से ऐसे ही चले जाना चाहिए। लेकिन जब भी मेरा जन्म हुआ तभी मेरे को भी वही शैतान ने पकड़ लिया। मैं जब भी 1 महीने की थी, मेरी मम्मी मेरे को लेके इधर उधर डोल रही थी, दुख के मारे आंसू बहाती हुई। और हम तब इस प्रभु में नहीं थे। और जब भी एक ज्योतिषी जो हाथ देखने वाला होता है, उसने मेरी मम्मी को बोला अपनी बेटी को मेरे हाथ में दे, तभी वो मेरी मम्मी ने उसके हाथ में मुझे दिया। तभी उसने मेरा हाथ देख के बोला, मेरी मम्मी को बोला घबरा मत, ये लड़की मरेगी नहीं, लेकिन ये तेरे पास भी नहीं रहेगी, ये परमेश्वर की भक्ति करेगी। मेरी मम्मी ने सोचा शायद हम लोग तो मंदिरों में जाते हैं, पुजारियों के पास जाते हैं, शायद ये भी ऐसे ही मंदिर में, नहीं तो पहाड़ों में जाके तपस्या करने लगेगी। ऐसे सोच के मेरी मम्मी, फिर भी मेरी मम्मी ने सोचा चलो ये तो मरेगी नहीं करके खुश हो गई। तो भी मेरे पापा ने शराब नहीं छोड़ा और घर में पूरा सर्वनाश होता था शराब के कारण। उसके बाद मेरी एक बहन हुई जो 1 महीने के बाद जिसकी डेथ हो गई। लेकिन तभी मेरे पापा ने मन फिराया
और प्रभु के सम्मुख में मेरी बहन को, मेरी मम्मी बोली इसको हम डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। पापा ने बोला कितने बच्चों को डॉक्टर के पास लेके गए लेकिन हमें वापस नहीं मिला, लेकिन अभी हम उस सच्चे डॉक्टर को पुकारेंगे। तभी मेरे पापा ने मेरी बहन को उठा के प्रभु से बोला, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, इस बच्चे को पर दया को जीवन दे दे। आधे घंटे के बाद मेरी बहन भी जिंदा हो गई। आज वो जीवित अपने परिवार में खुश है। फिर उसके बाद मैं बढ़ती गई। मेरे पापा को भी प्रभु ने उद्धार दिया, सच्ची संगति में आने के लिए मदद किया। और उसके बाद जब भी मैं बड़ी हुई, बढ़ती गई, मेरे जीवन में एक तमन्ना थी कि मैं भी प्रभु की सेवा करूंगी। मैं एक बुक पढ़ती होती थी साधु सुंदर सिंह की, और जब कैसे प्रभु के लिए कष्ट उठाता था, मैं भी चाहती थी कि जिस परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया है, मैं प्रभु को बोलती थी, प्रभु मैं भी ऐसे ही तेरे लिए कष्ट उठाना चाहती हूँ। मेरे प्रभु ने सच में, क्योंकि मेरा प्रभु जानता था मेरी तमन्ना को, वो हमेशा मुझे हर बात में आगे बढ़ाता, हर बात में मुझे सलाह देता था। इससे पहले कि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए सेवा के लिए रुकावट बने, वो प्रभु मेरी मम्मी को मेरे लिए दर्शन देता था। एक बार जब भी मैं कॉलेज पढ़ती थी, तभी मेरे मम्मी पापा ने सोचा अभी इसका हम विवाह करेंगे, क्योंकि मैं सबसे लाडली थी, इसलिए कि घर में कोई और बच्चा नहीं था और उन लोगों को यही था कि इसका धूमधाम के साथ शादी करेंगे। जब भी उन लोग इधर उधर जाके ढूंढने लगे, तभी मेरी मम्मी ने रात को एक दर्शन देखा कि सरोज का शादी हो रहा है, और वो लड़का और वो जो हम दोनों को देखा ऐसा एक सिंहासन पे बैठे हैं। मम्मी बोलते ऐसा मुकुट मैंने कहीं नहीं देखा जो तुम दोनों के सिर पे धरा है। सच में मेरी मम्मी ने सोच लिया। एक वो ज्योतिषी का बाद मेरी मम्मी को याद आया। फिर उसके बाद मेरी मम्मी ये सब दर्शन देखते हुए भी, वो मेरी मम्मी जो है वो चाहती थी कि हम इसको धूमधाम के साथ शादी करेंगे दुनिया में। लेकिन इसके एक बाद फिर मेरे मम्मी को ऐसे ही प्रभु ने फिर एक दर्शन दिया। एक पास्टर जी आए हैं, उन्होंने एक साड़ी दी है, एक वाइट फ्रॉक दी है। उन्होंने बोला ये वाइट साड़ी तेरी बड़ी बेटी के लिए है, क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, और सब जो वाइट फ्रॉक है तेरी सबसे छोटी बेटी के लिए है। फिर मेरी मम्मी ने सोचा कि सच में प्रभु इसको बुला रहा है सेवा के लिए। प्रभु मेरे साथ तो कोई भी बात नहीं करता था, क्योंकि मैंने प्रभु को पहले बोला प्रभु मुझे तेरी सेवा करनी है। उसके बाद मैंने अपने आप को प्रभु के लिए सौंप दिया। कॉलेज के टाइम में कई तरह के अपवित्र जीवन बिताना, सहेलियों के साथ मिलके इधर उधर जाना, और कॉलेज के टाइम में कॉलेज का भी टाइम वेस्ट करके पिक्चर देखना। घर में तो बहुत पवित्र जीवन बिताया, मम्मी पापा के सामने, संतों के सामने ऐसे रहती थी जैसे कि मेरे जैसा कोई पवित्र कोई नहीं होगा। लेकिन मेरे जीवन के बारे में मैं जानती थी, या शैतान जानता था या मेरे दोस्त जानते थे। लेकिन सच मेरे परमेश्वर ने मुझे समय पर मेरे जीवन को बदला, और वो अपने सेवा के लिए मुझे अलग किया। जब भी मेरे को मैड्रास कन्वेंशन के लिए जाना, क्योंकि पहली बार मैं जा रही थी, तभी मेरे मन में एक इच्छा हुई, यही अच्छा समय है अपने आप को प्रभु के हाथ में देने का। इस एक बात के लिए मेरे मन में मेरा मन टूट गया कि क्या फ़ायदा है इस संसार में जीवन बिता के, क्योंकि उन दिनों में हमारे उधर सेंटर में कोई भी सेवक नहीं था। मैंने ऐसे एक बात सुना कि सेंटर पास्टर अपना रूम खुद झाड़ू किया। ये सोच के मुझे बहुत दुख लगा। मैंने बोला प्रभु मेरी ये जवानी का क्या फ़ायदा है, हमारे संत लोग तेरे लिए इतना कष्ट उठाते हैं, तो मैं अपने आप को तेरे लिए देती हूँ। फिर उसके बाद मेरे पापा तो सोचे अगले साल चले जाना, लेकिन मैंने सोचा मैं इसी साल जाऊँगी करके सोच के मैं गई मैड्रास में। वहाँ पे फॉर्म भर दिया मम्मी पापा को बताए बगैर। जैसे मैंने फॉर्म भरा, मेरे को सेवा के लिए भी अलग हो गई मैं, प्रभु ने मुझे चुन लिया। जैसे मेरे ऊपर हाथ रखा, तुरंत उधर पंजाब में मेरे पापा को प्रभु ने दर्शन दिया कि प्रभु ने सरोज को सेवा के लिए चुन लिया है। प्रभु ने ऐसे ही बात किया। फिर उसके बाद तुरंत हमारे ब्रदर ने भी फ़ोन कर दिया कि ये प्रभु सरोज सेवा के लिए चली गई। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने उसके बाद फिर मैं जब भी सेवा में आई, प्रभु अब तक अपने अनुग्रह के द्वारा चलाता। लेकिन सेवा करते समय कई बार मैंने सबकी गवाही सुनती थी
कि प्रभु ने मुझे वो दर्शन दे के सेवा के लिए बुलाया, ये दर्शन दे के बुलाया। लेकिन मैं प्रभु को बोलती थी, प्रभु तूने तो मुझे एक भी दर्शन नहीं दिया। एक दिन मैं ऐसे दिल्ली कन्वेंशन में मैं बैठी, प्रभु से बोली तो प्रभु तू सच मुझे बता कि तूने मुझे बुलाया है या मैं खुद तेरी सेवा के लिए आई हूँ। मेरे प्रभु ने सच, तभी पास्टर टी थॉमस से मीटिंग चला रहे, उन्होंने एकदम जैसे मैंने सवाल किया तुरंत मुझे जवाब मिला, तूने मुझे नहीं मैंने तुझे चुना है करके। फिर उसके बाद मैंने एक दर्शन देखा कि पास्टर पीएम थॉमस बहुत सारे झुंड में से मुझे बुलाया, अकेले बुला के मेरे हाथ में सिर रखे, मेरे सिर पे हाथ रख के उन्होंने मुझे अभिषेक किया। तभी मुझे सच में एक निश्चय हुआ कि मेरे प्रभु ने मुझे चुन लिया। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। तब से लेके अब तक प्रभु अपने अनुग्रह के द्वारा मुझे चला रहा है। एक बात है, राजस्थान में सेवा करते हुए मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने सोचा शैतान मेरे जीवन में, मेरे मन में कई तरह के विचार लेके आ रहा था। मैं सोचा मेरे सिर में कैंसर हो गया है, क्योंकि मैं 1 महीना मेरे सिर में ऐसा दर्द है, ना मैं खड़ी हो सकती, ना मैं लेट सकती, ना मैं कंघी कर सकती। प्रभु ने अपनी दया के द्वारा, एक दिन मैंने मैगजीन पढ़ा, उसमें एक सिस्टर को भी ऐसे किडनी का प्रॉब्लम से बहुत दर्द उठा रही थी। तभी स्वर्गदूत आके बच्चे को जैसे अपनी माँ उसकी माँ लोरी देती वैसे सुलाया करके मैंने ऐसे प्रभु को बोला, प्रभु मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है, मैं लेट नहीं सकती, मुझे भी कैसे भी तो तसल्ली देना चाहिए, इस दर्द से मुझे भी छुटकारा देना चाहिए करके मैं ऐसे पढ़ते पढ़ते मैं सो गई। फिर उसके बाद मेरा सेंटर पास्टर उधर आए तो मैंने प्रार्थना करवाई। फिर अगली बार मैंने शैतान से एक बात की, मैंने बोला तू मुझे कितना भी दर्द देने से भी मैं जैसे याकूब ने मल्लयुद्ध करके प्रभु से आशीष पाई थी, मैं भी ऐसे ही आशीष पाऊंगी। मेरे सिर में दर्द हो रहा था तो भी मैंने संडे मीटिंग में खड़े होके मैंने प्रभु को बोला, मैंने सबके सामने गवाही दिया। मेरे प्रभु ने मेरे को सिर दर्द से छुटकारा दिया। जैसे मैंने ये गवाही दिया तो मेरे सिर दर्द और भी बढ़ने लगा, सहने से भी बाहर हो गया। लेकिन मेरे प्रभु ने सच में उसके बाद वो याकूब के जैसे मैंने प्रभु को बोला, प्रभु याकूब से भी बढ़ के मुझे तेरे ऊपर अधिकार है, प्रभु मुझे इससे छुटकारा दे। तभी प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया। आज तक वो सिर दर्द मुझे नहीं आया, मुझे मालूम भी नहीं वो सिर दर्द कहाँ है। मेरा प्रभु आज तक मुझे सब में सब कुछ होके चला रहा है, हर पल मुझे सिखाता है। आगे भी प्रभु मुझे चलाने के लिए, सिखाने के लिए, सेवा प्रभु की पूरी करते हुए सियोन में चमकने के लिए प्रभु मेरी मदद करना चाहिए। आप सबकी प्रार्थना मांगते हुए मैं बैठती हूँ।